So, first of all, I just want to ask a simple question. सबसे पहले तो मैं एक साधारण सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ It's a very common question all of us can ask. और एक बहुत ही साधारण प्रश्न है, हम सब इसे पूछ सकते हैं। How can we please God? परमेश्वर को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? Maybe we can ask answer I'm not asking anybody to unmute and tell, but many times the answer would be by obeying Jesus. और मैं सबसे अनम्यूट करके उत्तर देने के लिए नहीं कह रहा, पर कई बार हमारा उत्तर हो सकता है कि यीशु को जानकर, by obeying Jesus, यीशु की आज्ञाएं मानकर, by taking up a cross and following Jesus, अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलकर, by becoming wholehearted, पूर्ण हृदय बनकर, and we can give many answers like that. और ऐसे हम कई उत्तर दे सकते हैं। But this is question that many people have asked Jesus once. पर ये एक प्रश्न है जो कई लोगों ने एक समय यीशु से पूछा। And let's see what answer Jesus gave. और आइए हम देखेंगे यीशु ने क्या उत्तर दिया। You can see that in John chapter 6. हम यूहन्ना रचित सुसमाचार इसके 6ठे अध्याय में देखते हैं। John chapter 6 and verse 28. रचित सुसमाचार 6ठा अध्याय उसका 28 वचन। They said to him, "What shall we do that we may work the works of God?" और उन्होंने उनसे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? The question they ask is, what works we should do so that we can please God? That is the question they asked. और उनका प्रश्न का मतलब ये था कि हमें कौन से काम करने चाहिए ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। And see what Jesus answers in verse 29. और देखिए 29 वचन में यीशु का क्या उत्तर है। Jesus answered and said to them, "This is the work of God, that you believe in him whom he sent." यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। In other words, what Jesus was telling is the first work God wants anybody to have in their life is not obedience or taking up a cross and following Jesus. I'm not saying any of these are not important, but it is to have faith in God. दूसरे शब्दों में यीशु उनसे ये कह रहा था, जो पहला काम हमें करना है परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, वो आज्ञा मानना नहीं है, अपना क्रूस उठाना नहीं है। ये नहीं कि ये बातें महत्वपूर्ण नहीं है, पर जो पहली चीज परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है वो ये है कि हम उसमें विश्वास करें। We know that verse in, I think, Hebrews 11:6 also. Without faith, it is impossible to please God. और हम इब्रानियों 11:6 के उस वचन को जानते हैं कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना या असंभव है। See, what happens when our obedience or taking up a cross and following Jesus is without faith. जब हमारी आज्ञाकारिता और हमारा क्रूस उठाना बिना विश्वास का होता है, तब there is a verse in Galatians chapter 5. गलातियों की पत्री उसके 5वें अध्याय में एक वचन है। You can see that verse in verse 6. उसके 6ठे वचन में हम देखते हैं, In Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision avails anything, but faith working through love. मसीह यीशु में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। In other words, what that verse says is faith, that what matters in our Christian life first and foremost is faith that produces love. दूसरे शब्दों में हमारे मसीही जीवन में अगर कोई बात मायने रखती है सबसे पहले, तो वो है ऐसा विश्वास जो प्रेम में प्रकट होती है। And we know that when love comes, faith comes first, which produces love, and that love produces obedience in our life. हम जानते हैं कि पहले विश्वास आता है, विश्वास प्रेम को उत्पन्न करता है, और वो प्रेम हमारे जीवन में आज्ञाकारिता को उत्पन्न करता है। And that will produce still greater faith and still greater love and still greater obedience. और ये और भी अधिक विश्वास, और भी अधिक प्रेम और भी अधिक आज्ञाकारिता को उत्पन्न करेगा। Please remember that
faith should come first. That produces love, that produces obedience, and then we can go to a higher Christian life. कृपया याद रखें कि सबसे पहले विश्वास आता है, वही प्रेम को उत्पन्न करता है, वही आज्ञाकारिता को उत्पन्न करता है, और उसके बाद ही हम एक उच्च मसीही जीवन में प्रवेश कर सकते हैं. But instead of that, if we put obedience first, imagine taking up a cross first without having faith. पर इसके बजाय अगर हम पहले आज्ञाकारिता पर जोर दें या क्रूस उठाने पर जोर दें बिना विश्वास के, that will produce dead works. तो वो हमारे जीवन में मरे हुए काम उत्पन्न करेगा. Because any obedience without love and faith will only create dead works. क्योंकि कोई भी आज्ञाकारिता अगर विश्वास के बिना या प्रेम के बिना हो तो उनसे केवल मरे हुए काम ही उत्पन्न होंगे. And that will produce unbelief. और वो अविश्वास को उत्पन्न करेगा. Will produce disobedience. वो अनाज्ञाकारिता को भी उत्पन्न करेगा. And will produce greater unbelief and greater dead works. और वो उससे भी ऊंचा अविश्वास, उससे भी ज्यादा मरे हुए कामों को उत्पन्न करते रहेगा. I'm not telling something complicated. I'm trying to tell you something very simple in Christian life. अब मैं आपको कुछ कठिन ऐसा नहीं बता रहा, मसीह जीवन में जो बहुत ही साधारण है ऐसी चीज मैं आपको बता रहा हूँ. The first and most important thing, or we can say, as Brother Zach says, the ground floor of our Christian life. और पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज, या जैसे भाई जैक हमें बताते हैं कि हमारे मसीही जीवन का जो ग्राउंड फ्लोर है, it is faith in the love of God. वो है परमेश्वर के प्रेम में विश्वास. Faith in the love that God loves me with a tremendous love. परमेश्वर के इस प्रेम पर विश्वास कि परमेश्वर एक बहुत अद्भुत और बड़े प्रेम से मुझ पर प्रेम रखता है. That on the top of it, we can build a personal life of obedience and taking up a cross. इसी सत्य के ऊपर हम अपना व्यक्तिगत जीवन विश्वास का और क्रूस उठाने का जीवन इसके ऊपर हम बांध सकते हैं. And on top of that comes our family life. और इससे भी ऊपर हमारा पारिवारिक जीवन, इसके ऊपर हम बांध सकते हैं. And on top of that comes a church life. और उससे ऊपर है हमारे कलीसिया का जीवन. But what happens when that ground floor is shaky? That means ground floor is not at all right, that I don't have that true faith in the love of God. पर तब क्या होता है अगर जो ग्राउंड फ्लोर सबसे निचली मंजिल है वो सही नहीं है, वो हिल रही है, इसका मतलब परमेश्वर के विश्वास को मैं सही से नहीं जानता, प्रेम को मैं सही से नहीं जानता, तो that will create a personal obedience and taking up a cross which is totally defective. वो ऐसे व्यक्तिगत आज्ञाकारिता या ऐसे क्रूस उठाने को उत्पन्न करेगी जो बिल्कुल प्रभावशाली नहीं रहेगी. And we can say our family life also will suffer. और हम कह सकते हैं कि हमारा पारिवारिक जीवन भी उस वजह से समस्या में होगा. And a church life also will suffer. और हमारे कलीसिया का जीवन भी. So please remember, the first thing we saw that verse in John chapter 6 when people asked, what works shall we do to please God? और इसलिए कृपया इसे याद रखें जो हमने पहला वचन देखा था यूहन्ना 6:28 में, कि जब लोगों ने यीशु से पूछा कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए. And the answer Jesus gave is, this is the work of God that God wants you to do, that you put faith in God. और यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि ये वो काम है जो परमेश्वर चाहता है कि तुम करे, कि तुम उसमें विश्वास करो. Think of a train with maybe 20 bogies. और सोचकर देखिए एक ट्रेन जिसमें 20 डिब्बे हैं. Imagine you put the engine right at the back. और सोचकर देखिए अगर उस ट्रेन का जो इंजन है आप आगे नहीं सबसे पीछे लगाते हो तो You know what will happen? The driver cannot see the signal. It is sure and it is absolutely sure that it will cross the red signal and there will be some accident. और वो जो ड्राइवर है, जो ट्रेन चलाने वाला है, वो आगे कुछ नहीं देख पाएगा, वो सिग्नल नहीं देख पाएगा, इसलिए बिल्कुल निश्चित है कि आगे जाकर उस ट्रेन के साथ कोई दुर्घटना होगी. And that is what happens in the life of many people. और यही कई लोगों के जीवन में होता है. I want to tell you that was exactly what was happening in my life. मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे जीवन में यही हो रहा था. Till I found that
the first thing that God wants is not obedience, not taking up a cross, but what the first thing, the very first thing that God wants is faith in Him. जब तक मैंने इस बात को नहीं खोजा कि जो पहली चीज परमेश्वर मुझसे चाहता है वो क्रूस उठाना नहीं है, आज्ञाकारिता नहीं है, सबसे पहली चीज जो परमेश्वर चाहता है कि मैं उसमें विश्वास करूं. And faith in the fact that God loves me with a tremendous love. और इस सत्य में विश्वास करना कि परमेश्वर एक बहुत ही अद्भुत बड़े प्रेम से मुझसे प्रेम रखता है. Many times we heard Brother Zach telling that God is a father, that has to become a revelation in our life. और कई बार भाई जैक को हमने कहते हुए सुना है कि परमेश्वर हमारा पिता है, ये सत्य हमारे जीवन में एक प्रकाशन बन जाना चाहिए. You know, in the Old Testament, they could not see God as a father. They thought of God as somebody who is so great, but they never could understand the great love with which God loved us. और पुराने नियम में वे कभी इस बात को नहीं समझ पाए कि परमेश्वर उनका पिता है, क्योंकि वो परमेश्वर को कोई ऐसा विराट महान व्यक्ति देखते थे. वे कभी समझ नहीं पाते थे कि परमेश्वर उनसे प्रेम रखता है. It's like a curtain behind the curtain. Somebody is there, and they could never understand who is that person. मानो किसी पर्दे के पीछे कोई व्यक्ति है और वे कभी उस व्यक्ति को समझ नहीं पाए. But Jesus came and removed that curtain and showed that it is our God is an extremely loving God. पर यीशु ने आकर उस पर्दे को हटा दिया और हमें ये दिखाया कि हमारा परमेश्वर एक बहुत अधिक तीव्र प्रेम रखने वाला परमेश्वर है. So first of all, I want to tell about this faith in the love of God. और सबसे पहले मैं इस विश्वास के बारे में बात करना चाहता हूँ, परमेश्वर के प्रेम में विश्वास. Maybe you may think that it is so foundational, but we have to lay these foundations again and again. आप शायद ये सोचते होंगे कि ये बहुत ही मूलभूत एक बात है, पर हमें इन नींव को बार बार रखना है. I saw in my own life that this is something I had to remember again and again, that God loves me with a tremendous love. मैंने अपने खुद के जीवन में देखा है कि ये एक ऐसा सत्य है जो मुझे बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ता है. Many times when we go through difficult situations, when we go through tough situations, tough trials, I have to remember that, Lord, you love me with a tremendous love. In the midst of all these problems, you love me with a tremendous love. I just want to believe that. कि परमेश्वर मुझसे एक अद्भुत प्रेम रखता है. कई बार कठिन परिस्थितियों में, कठिनाइयों में जब मैं जाता हूं तो मुझे बार बार ये अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि परमेश्वर इन परिस्थितियों के बीच भी एक तीव्र प्रेम से मुझसे प्रेम रखता है. First of all, let's see this verse in Jeremiah chapter 31. सबसे पहले हम इस वचन को देखेंगे, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 31 अध्याय 31 and verse 3. 31 अध्याय उसका 3रा वचन. It is written, the Lord has appeared to me saying, yes, I have loved you with an everlasting love. Therefore, with loving kindness, I have drawn you. यहाँ लिखा है कि यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है. See, what is the meaning that I have loved you with an everlasting love? इसका क्या मतलब है कि एक सदा से, या इंग्लिश में जैसे लिखा है अनंत काल से मैं तुझसे प्रेम रखते आया हूँ. It means God can never stop loving us. इसका मतलब परमेश्वर कभी हमसे प्रेम करना रोक नहीं सकता. If you are a child of God, God can never stop loving you. अगर आप परमेश्वर की संतान हो तो परमेश्वर कभी आपसे प्रेम करना रोक नहीं सकता. It's something like in our church, there is a family in Chennai, in our church here. There's a family who got the first girl child, I think, after 6 or 7 years. और यहाँ चेन्नई में हमारे एक परिवार है जिनको अपने विवाह के 6-7 वर्षों बाद पहले बार एक बेटी हुई. No, it's like a tremendous wealth that family has got. They are so delightful. Just to see that child, to take that child and to love that child, they are so delightful. और मानो एक बहुत बड़ी संपत्ति उन लोगों ने हासिल कर ली है. वे इतने खुश होते हैं, इतने आनंद से भर जाते हैं केवल उस बच्चे को लेकर उससे प्रेम करने के लिए. I remember, I don't know, I've said this before also perhaps, but I just want to repeat that once again, because that's a picture that I remember many times before my own eyes.
और शायद ये मैंने पहले भी कहा है, पर मैं इसको दोहराना चाहता हूँ क्योंकि ये एक चित्र मैं हमेशा अपनी आंखों के सामने रखता हूँ। Uh, I remember many years ago when I was traveling in the local train in Mumbai. मुझे याद है कई सालों पहले जब मुंबई की लोकल ट्रेन में मैं यात्रा कर रहा था, One father was taking maybe a 3 months old child, and he was talking to the child, kissing the child, talking to the child, kissing the child. It was a delightful sight. और एक पिता अपने 3 महीने के बच्चे को लेकर वहां यात्रा कर रहा था, वो उससे बात कर रहा था, चूम रहा था, उससे बात कर रहा था, चूम रहा था। वो एक अवर्णनीय ऐसा नजारा था। And as I was seeing that, I was thinking, Lord, this is how you look at me. और जब मैं उसे देख रहा था तो मैंने सोचा, प्रभु इस प्रकार तू मुझे देखता है। There is a song in English that it starts like this: there's within my heart a melody. इंग्लिश में एक गीत है जो जिसकी शुरुआत होती है कि मेरे हृदय में एक धुन है। One of the stanzas goes like this. उसका एक उसमें कुछ पंक्तियां इस प्रकार है: feasting on the riches of his grace. उसके अनुग्रह के धन पर मैं मानो उत्सव कर रहा हूँ। Resting neath his sheltering arms. उसके जो मुझे सहारा देने वाले जो उसके पंख है, उसके नीचे मैं विश्राम करता हूँ। And just note this sentence: always looking at his smiling face. और उसके आगे का पंक्ति ये कहती है कि हमेशा उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखते हुए। That is why I shout and sing. इसलिए मैं चिल्लाता हूँ और गाता हूँ। See, the reason, Bible says rejoice always. Many people think how it is possible. ये कारण कि क्यों बाइबल हमें बताती है कि सदा आनंद करो, कई लोग सोचते हैं कि ये कैसे संभव है। See, we are not called to rejoice in our situation, but in the fact that in the midst, even the midst of all my failure, even the midst of all my difficulties, God is smiling at me and is rejoicing over me. हमारी ये बुलाहट नहीं है कि हम अपने परिस्थितियों में आनंद मनाएं, बल्कि हमारे सारे असफलताओं के बीच भी, मेरे सारे कठिनाइयों के बीच में भी हम इसमें आनंद कर सकते हैं कि परमेश्वर मुझसे खुश है, मुझसे प्रेम रखता है। This verse, maybe many of you know, but we can repeat it in Zephaniah chapter 3. शायद इस वचन को आप में से कई लोग जानते हैं, पर जो नहीं जानते उनके लिए मैं दोहराता हूँ। सपन्या नबी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, verse 17. उसका 17 वचन। The Lord your God is in your midst. तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है। Mighty one will save. He will rejoice over you with gladness. He will be quiet in his love, and he will rejoice over you with singing. वो उद्धार करने में पराक्रमी है, वो तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वो अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। Just think of that verse. He looks at me and sings over me with shouts of, with loud singing. इस वचन के बारे में सोचकर देखिए कि वो मुझको देखकर ऊंचे स्वर से गाता है और आनंदित होता है। Yeah, that is the God that we have got. He is so happy that he has got each one of us as his children. ये परमेश्वर है हमारा, वो इतना ज्यादा खुश है कि हम में से हर एक उसकी संतान है। We can see another verse in Isaiah chapter 49. हम एक और वचन देख सकते हैं यशायाह उसके 49 अध्याय में, 49 and 14 to 16. यशायाह उसका 49 अध्याय, उसका 14 से लेकर 16वां वचन। Brother, you can read, brother, in Hindi. परंतु सियोन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। 15 वचन, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरे दृष्टि के सामने बनी रहती है। See, just see what is written. God has inscribed my name, Sam, in the palms of his hand. और जस्ट देखिए क्या लिखा है कि परमेश्वर ने मेरा नाम, यहाँ हिंदी में चित्र लिखा है पर इंग्लिश में मेरा नाम अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है। On his nail print hand, my name is written. उसके खीले से छिदे हुए जो हाथ है, उसी पर मेरा नाम लिखा गया है। And maybe a father can forget
his child, but a mother can never forget her child. शायद एक पिता अपने बच्चे को भूल सकता है, पर एक माँ अपने बच्चे को कभी नहीं भूल सकती। And the word of God says, even if she forgets, I'll never forget you. और परमेश्वर का वचन कहता है यदि वो भी भूल जाए तो मैं कभी नहीं भूल सकता। Yeah, that is the way God loves each one of us. ये इस तरीके से परमेश्वर हम में से प्रत्येक से प्रेम रखता है। We can see this verse in Ephesians chapter 1 verse 18. इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसके 18 वचन में हम इसको देखते हैं। In Living Bible, I want to read this verse. और इसका लिविंग बाइबल में जो भावानुवाद है मैं वो पढ़ना चाहता हूँ। It's written, I want you to realize that God has been made rich because we who are Christ have been given to him. और वहां लिखा है कि अंकल कैन यू रीड इट वंस इन पार्ट बाय पार्ट? I want you to realize that मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझे। God has been made rich कि परमेश्वर धनवान बन गया है because we who are Christ क्योंकि हम जो मसीह के हैं have been given to him. हमें उसे दे दिया गया है। Yeah, that means, just think, can you think that God has become rich because he could have me as his child? इसका मतलब क्या आप सोचकर देख सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि परमेश्वर और धनवान या और अमीर बन गया क्योंकि मैं उसके संतान बन गया। Many times we think that this Almighty God, he is all self-existent. There is no need for any one of us. But the word of God says that because he could get each one as his children, God is so delighted, so happy. कई बार हम सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर जो इतना सर्वशक्तिमान है, जो उसका हमेशा से अस्तित्व था, उसको और किसी की क्या जरूरत, पर बाइबल हमें बताती है वो और भी अमीर और भी धनवान बन गया जब उसने हम में से प्रत्येक को अपनी संतान के तौर पर पाया। I believe that we have to really be established in these factors, in these verses. मेरा विश्वास है कि इन सत्यों में हमें वास्तविकता में मूल लेना है। In 1 John chapter 4 verse 16 it's written, we have known and believed the love that God has for us. पहला यूहन्ना उसके चौथे अध्याय के 16वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जो हमसे प्रेम रखा है उसको हम जान गए हैं और हमें उसका विश्वास है। See, I think many of us know all these verses. मैं सोचता हूँ कि हमें से कई इन सारे वचनों को जानते हैं। But what is most important is not knowledge, but what is most important is that we believe in the love that God has for us. पर सबसे महत्वपूर्ण चीज ज्ञान नहीं है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण है कि हम उस प्रेम में विश्वास रखें जो परमेश्वर का हमारे प्रति है। You know, there is a time when Jesus, he looked to heaven and said, Father, I'm so happy that you have hidden these things from the wise and intelligent and you have revealed them to babes. एक समय था जब यीशु ने स्वर्ग की ओर देखकर कहा कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानी और समझदारों से छिपा रखा है और बालकों पर प्रकट किया है। What is he actually talking about? अब वो वहां किस बात के बारे में बात कर रहा है? You can see that verse in Matthew chapter 11. हम उसको देख सकते हैं मत्ती उसके 11वें अध्याय में। He was actually speaking about many cities in which he spoke many times, but they did not repent and turn to God. और वो कई शहरों के बारे में बात कर रहा था जहां उसने कई दफा प्रचार किया था, पर वे मन फिराकर परमेश्वर के पास मुड़ नहीं रहे थे। And he said, Father, I thank you because you have hidden these wonderful truths from wise and intelligent people, but you have revealed them to babes. और फिर वो कहता है कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानी और समझदारों से छिपा रखा है और बालकों पर प्रकट किया है। And what is the thing that he reveals to babes? और वो बालकों पर क्या प्रकट करता है? Verse 27. 27 वचन। He's telling all things have been delivered to me by my Father. No one knows the Son except the Father, nor does anyone know the Father except the Son, and he to whom the Son wills to reveal him.
27 वचन में वो कहता है, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। See, this verse very clearly says, no one can know God as a father unless Jesus reveals that to us. और ये वचन बिल्कुल साफ साफ कहता है कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को पिता के तौर पर तब तक नहीं जान सकता जब तक पुत्र हम पर उस बात को प्रकट ना करे। And revelation comes when we become like babes. और प्रकाशन केवल तब आता है जब हम छोटे बालकों के समान, बच्चों के समान बनते हैं। Just see what is the very next verse, what is written. सोचकर देखने कि बिल्कुल अगला वचन क्या है। It's written, come to me all who are labor and heavy laden, I will give you rest. अगला वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। I want to read that verse like this. Come to me, you who are discouraged, depressed, and laboring, heavy laden, and ask me for this revelation. That will lead you to rest. और मैं इस वचन को इस प्रकार पढ़ना चाहता हूं कि हे तुम जो सब निराश, जो आशाहीन हो, बोझ से दबे हुए हो, परिश्रम करने वाले हो, मेरे पास आओ और मुझसे मांगो और मैं तुम्हें ये प्रकाशन दूंगा, और वो प्रकाशन के द्वारा तुम विश्राम पाओगे। And what is the revelation that I need? To know God first of all as a loving father. और वो कौन सा प्रकाशन है जो मेरी आवश्यकता है कि मैं परमेश्वर को सर्वप्रथम अपने पिता, एक प्रेम करने वाला पिता के तौर पर जानूं। And after that, what is written? Take my yoke upon you and learn from me. और उसके बाद क्या लिखा है कि मेरा जो अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। That is, take my cross and follow Jesus. That is about obedience. इसका मतलब मेरा क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना, ये है आज्ञाकारिता की बात। For I'm gentle and humble in heart, and you'll find rest for your soul. क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। But what comes before that, taking up a cross and following Jesus in our obedient, in a life of obedience? पर हमारे अपने क्रूस को उठाकर और एक आज्ञाकारिता का जीवन जीने के पहले क्या आता है? What comes is to know God as a loving father. उससे पहले ये बात है कि हम परमेश्वर को एक प्रेम करने वाले पिता के तौर पर जाने। We can see this verse in John chapter 17. यूहन्ना के 17 अध्याय में हम एक वचन को देखते हैं and verse 24. इसका 24 वचन। It is written, Father, I desire that they also whom you gave me may be with me where I am, that they may behold my glory which you have given me, for you loved me before the foundation of the world. हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। This thing, Father loved Jesus before even the world was founded. सोचकर देखिए कि पिता ने यीशु से इस जगत की उत्पत्ति से पहले से भी प्रेम रखा है। Now we can see this verse in Ephesians chapter 1. अब हम इस वचन को इफिसियों की पत्री उसके पहले अध्याय में देखेंगे, verse 3 and 4. उसका तीसरा और चौथा वचन। It is written, God, our Father, the Lord Jesus Christ, He has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him in love. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। See, the word in Jesus, in Him, comes so often in the book of Ephesians. कि हम मसीह में या हम यीशु में, ये जो शब्द है यीशु में या मसीह में, ये कई बार इफिसियों की पत्री में पाए जाते हैं। You know what we see, the wonderful truth we see is we are in Jesus today. और अद्भुत सत्य जो हम देखते हैं वो ये है कि आज हम यीशु में हैं। And because we are in Jesus, even before the foundation of the world, I am put in Jesus. और क्योंकि मैं यीशु में हूं, इसलिए इस जगत की उत्पत्ति से पहले ही मुझे यीशु में रख दिया गया। And He has chosen me before the foundation of the world. और इस जगत की उत्पत्ति से पहले उसने मुझे चुन लिया। Just imagine how
precious we are to God. Even before this whole world was founded, God has chosen me and he has put me in Jesus Christ. सोचकर देखिए कि परमेश्वर के लिए हम कितने बहुमूल्य हैं कि इस जगत के उत्पत्ति से पहले भी उसने मुझे चुन लिया और मुझे मसीह में रख दिया। I believe when we reach heaven, many of the angels, most of the angels, they will never understand why God has loved these puny little creatures like human beings so much that he came all the way from heaven for these puny little creatures and he died for them and he values them so much. मेरा विश्वास है कि जब हम स्वर्ग जाएंगे तो कई स्वर्गदूत हमें देखकर सोचेंगे कि वो क्या था जिसके वजह से परमेश्वर ने इन छोटे से निर्बल मनुष्यों से प्रेम रखा, जिसके लिए वो इस पृथ्वी पर आया और हमारे लिए मरा। Just see another verse in Ephesians chapter 1 verse 6. एक और वचन हम देखेंगे, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 6वां वचन। It's written, he has made us accepted in the beloved. वहां लिखा है कि उसके उस अनुग्रह की महिमा के उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया है। That is written in KJV or NKJV. It is written like that. God has made us accepted in the beloved. और एक और भाषांतर में ये लिखा है कि परमेश्वर ने अपने जो प्रिय था उसमें हमें स्वीकार किया है। In other words, I need not have to strive and try to do something to be accepted to God. दूसरे शब्दों में मुझे कोशिश करके कड़ी मेहनत करके कुछ करने की जरूरत नहीं है ताकि वो करने के बाद परमेश्वर मुझे स्वीकार करे। Just think of my child in my home. Do you think my child has to perform something so that he has to be pleasing to me? मेरे घर में मेरे बच्चे के बारे में सोचकर देखिए कि क्या मेरे बच्चे को कुछ करके दिखाना होगा जिसके वजह से मैं उससे प्रसन्न हूं या मैं उससे प्रेम करूं। See, many times that is the way we think. We have to do something, we have to perform something, then only God will be happy. कई बार हम इसी प्रकार से सोचते हैं कि मुझे खुद से कुछ करना पड़ेगा, कुछ करके दिखाना पड़ेगा, तब भी परमेश्वर मुझसे खुश होगा, प्रसन्न होगा। Just think of this verse. It's written, God has made us accepted in the beloved. इस वचन के बारे में सोचकर देखिए कि उस प्रिय में परमेश्वर ने हमें स्वीकार किया है। Because I am his child, I am already accepted, and God is so happy with me. क्योंकि मैं उसकी संतान हूं, परमेश्वर ने पहले से ही मुझे स्वीकार किया और वो मुझ में बहुत खुश है। I want to tell you, if this foundation is not there, we will only come up with 101 dead works. मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हमारे जीवन में ये नींव नहीं है, हम केवल 101 मरे हुए काम ही उत्पन्न कर पाएंगे। Try to please God with all different dead works, and it will just end up in unbelief and depression and discouragement. हम परमेश्वर को अलग अलग मरे हुए कामों से प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे, उसके द्वारा केवल निराशा ही उत्पन्न होगी। Just see one more verse. It's written in Ephesians 1 and verse 8. एक और वचन देखेंगे, इफिसियों पहला अध्याय 8वां वचन। I want to read that in Living Bible. It's written like this: God showers his love for us. He showered down upon us the riches of his grace. और मैं इसको लिविंग बाइबल के भाव अनुवाद में पढ़ना चाहूंगा कि परमेश्वर ने उसके अनुग्रह की मानो हम पर बरसात की है। God has showered upon us the riches of his grace. उसके अनुग्रह के जो धन है उसने हम पर वर्षा की है। Yeah, that is something that we have to believe. Lord, you have showered upon us forgiveness of sin, justification, baptism of the Holy Spirit, and all the different blessing in Christian life you have showered upon us. और यही एक बात है जिस पर हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर तूने मुझ पर इन बातों की वर्षा की है, मेरे पापों की क्षमा, धर्मी ठहराया जाना, पवित्र आत्मा का अभिषेक, इन सारे आशीषों को तूने मुझ पर उनकी वर्षा की है। So that is the first thing I want to tell. God wants all of us to have this firm foundation that God loves me with an everlasting love. और ये एक पहली बात है जो मैं कहना चाहता हूं कि ये एक बहुत ही स्थिर हमारे जीवन में नींव हो कि परमेश्वर एक अनंत प्रेम से मुझसे प्रेम रखता है। I want to tell you that this is the faith that can really build a Christian life. We can blossom in a Christian life. मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो विश्वास है जो वाकई में हमारे मसीही जीवन को बना सकता है, उसका निर्माण कर सकता है और हम ऐसे मसीही जीवन में खिल सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं।
Now, secondly, I want to tell about faith in the fact that God has forgiven all our sin. दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, इस सत्य में विश्वास करना कि परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को क्षमा किया है. I just want to show you 2-3 verses. First of all, in Hebrews chapter 8, verse 12. मैं आपको कुछ वचन दिखाना चाहता हूं. सबसे पहले इब्रानियों की पत्री 8 उसका 12 वचन, 8वां अध्याय 12वां वचन. Is written, He will be merciful to your unrighteousness and our sins and lawlessness. He will remember no more. वहां लिखा है, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा. See, just imagine what is written. God is telling, I'll remember your sin no more. सोच कर देखिए यहाँ क्या लिखा है. परमेश्वर कह रहा है कि मैं फिर तुम्हारे पापों को याद न करूंगा. See, there is no need to live in condemnation over some of the things that we have done in the past. If you have truly repented and turned, God is telling, I'll never remember them again. हमने जो अतीत में चीजें की है उनके विषय में दंडाज्ञा महसूस करके, अपराधी महसूस करके हमें जीने की जरूरत नहीं. अगर हमने वाकई में उनसे मन फिराया है और क्षमा मांगी है तो परमेश्वर कहता है कि मैं उन बातों को फिर याद भी नहीं करूंगा. It's written in Hebrews chapter 10. इब्रानियों की पत्री 10वें अध्याय में लिखा है. It's written that if you read from verse 1 onwards, is written, for the law having a shadow of good things to come and not the very image of things, can never by the same sacrifices which they offer continually year by year make those who approach perfect. इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय पहला वचन, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती. See, when we hear the word perfect, many times, oh, that is unattainable for me. Many times we are afraid of that word perfect. कई बार जब हम सिद्ध इस शब्द को सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं, ये तो पाना, हासिल करना तो असंभव है. हम इससे मानो कतराते हैं या डरते हैं. But what we have to remember is there is one perfection actually we in our physical life always want to have. पर हमें ये याद रखना है कि एक प्रकार की सिद्धता है जो हमारे शारीरिक जीवन में हम हमेशा चाहते हैं. See, how many of us want to have little cold in our life, little cough in our life, little bit TB, little bit cancer, that's okay. No, we all want perfect health. हम में से कितने लोग हैं जो थोड़ी सी खांसी हमें ठीक लगेगी, थोड़ा सा जुकाम हो जाए चलेगा, थोड़ा सा टीबी हो जाए चलेगा, थोड़ी मात्रा में अगर हमें कैंसर हो तो चलेगा. नहीं, हम सब सिद्ध तौर पर स्वास्थ्य चाहते हैं. That is exactly what God wants in our life also. God wants us to be perfect. और बिल्कुल यही तो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है. परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्ध बन जाए. But what is the perfection he is talking about? पर वो किस सिद्धता की बात कर रहा है? Here it's written, what happens in the Old Testament is year after year they have got a remembrance of, that is what the verse 1 says. They offer these sacrifices again and again, year after year. And verse 2 says, the worshippers once purged, they always will be remembering their sins again and again in the Old Testament. और यहाँ पहले वचन में लिखा है कि साल प्रति वर्ष वे जो अलग एक ही प्रकार के बलिदान को चढ़ाते हैं. पर दूसरा वचन कहता है कि ये जो आराधना करने वाले ये एक ही बार शुद्ध हो जाते हैं पर उनका विवेक उन्हें पापी ठहराता है. मतलब वे उसको याद रखते हैं कि उनका पाप क्या है, उन्हें याद रहता है. And verse 3 we can see that in those sacrifices there is a reminder of sin every year after year. और तीसरे वचन में लिखा है, परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है. In other words, that remembrance, okay, last week I did that, week before that I did that, okay, last month I did that. That remembrance is there all the time in their mind. दूसरे शब्दों में कहे तो निरंतर उन्हें याद रहता है कि पिछले हफ्ते मैंने ये किया था, पिछले बार मैंने ये किया था, पिछले महीने मैंने ये पाप किया था. बार बार ये जो याद रखना, ये जो स्मरण है वो उनके पास रहता है. And verse 4 says it's not possible for the blood of goats and bulls to take away sin. चौथा वचन कहता है, क्योंकि ये अनहोना है या ये असंभव है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे. But we have to ask this question, are we living like that also? पर हमें अपने आप से प्रश्न करना होगा, क्या हम भी इसी प्रकार जी रहे हैं?
in that case, we are in the Old Testament, we are treating the blood of Jesus like the blood of bulls and goats. अगर ऐसा है तो हम पुराने नियम में जी रहे हैं और हम यीशु मसीह के लहू को बैलों और बकरों के लहू के समान उससे बर्ताव कर रहे हैं। But the most wonderful thing is what is written is the worshippers will have no consciousness of sin. पर सबसे अद्भुत बात जो लिखी है कि जो आराधना करने वाले होंगे उनको पाप का कोई विवेक नहीं होगा, कोई स्मरण नहीं होगा। In other words, we can come with perfect conscience before God. दूसरे शब्दों में हम बिल्कुल सिद्ध विवेक के साथ परमेश्वर के सामने आ सकते हैं, Because we are cleansed by the blood of Jesus. क्योंकि हम यीशु के लहू द्वारा शुद्ध किए गए हैं। It is not the blood of bulls and goats that is there, but we are cleansed by the blood of Jesus, and we can come with tremendous boldness, with a perfect conscience before God. क्योंकि बैलों और बकरों का लहू नहीं बल्कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध किए गए हैं, इसलिए हम एक सिद्ध विवेक के साथ परमेश्वर के सामने आ सकते हैं। I want to ask each of my dear brothers, this is the way we are living? मैं आप सब प्रिय लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार हम जी रहे हैं? Just think of that verse that we read just before. Jesus said, I will remember your sin no more. सोच कर देखिए, अभी अभी जो हमने वचन पढ़ा कि यीशु कहता है मैं उनके पापों को फिर याद न करूंगा। He has cleansed us and I can come to God with a perfect conscience. I need not have to remember any sin that I have done in my life. उसने मुझे शुद्ध किया है और मैं परमेश्वर के सामने एक सिद्ध विवेक के साथ आ सकता हूं और मुझे कभी किसी पाप को याद करने की जरूरत नहीं जो मैंने अपने जीवन में कभी किया हो। See, that is the boldness we can have in the New Testament. ये हियाव है जो नए नियम में हमारे पास हो सकता है। That is the perfection he is talking about. यही सिद्धता है जिसकी वो बात कर रहा है। Perfect in our conscience. Our conscience need not trouble us about anything that we have done. हमारे विवेक में बिल्कुल सिद्ध कि हमारा विवेक हमें कोई भी चीज जो हमने की हो उसके विषय में सताता नहीं। We can see also that verse in chapter 10 verse 19. और Therefore, having boldness to enter the holy of holies, how? By the blood of Jesus. इसलिए हम इब्रानियों 10:19 भी पढ़ सकते हैं। इसलिए हे भाइयों, जब हमें पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, कैसे? यीशु के लहू के द्वारा। That means we can enter into the most holy place before God. We can come to his presence clothed in his righteousness. इसका मतलब हम उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं, हम परमेश्वर के सामने आ सकते हैं उसकी धार्मिकता को पहने हुए। So I said about two faiths. You may think it is foundational, but we have to be absolutely established in these things. और मैंने दो विश्वासों के बारे में बात की। हमें लगेगा कि शायद ये बड़ी मूलभूत चीजें हैं, पर हमें पूर्ण तौर पर इन सत्यों में बिल्कुल हमें स्थापित होना है। You know, I want to show you a verse in 2 Peter. मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूँ दूसरा पत्रस में, in chapter 1. पहला अध्याय। You know what Peter is telling? आप जानते हो पत्रस यहाँ क्या कहता है? verse 16. उसका 16वां वचन। One minute. Yeah, no, not 16. Sorry, verse 12. Sorry. उसका 2 Peter chapter 1 verse 12. दूसरा पत्रस पहला अध्याय 12वां वचन। Here Peter is telling, therefore I will not be negligent to remind you always of these things, even though you know them and are established in the present truth. यहाँ पत्रस कहता है, इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। Just imagine what Peter is telling. You know them, you are established in them. Still, I want to remind you these things. सोच कर देखिए, पत्रस कहता है कि तुम इन बातों को जानते हो, उनमें तुम बने रहते हो, उसके बावजूद मैं तुम्हें इन बातों को याद दिलाना चाहता हूँ। Because it's so very important for us to be absolutely founded in these truths. क्योंकि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इन सत्यों में पूर्ण तौर पर जड़ पकड़े हुए उसमें बने। Then only we can really grow in our Christian life. तब ही हम अपने मसीही जीवन में वास्तविकता में उन्नति कर पाएंगे, बढ़ सकेंगे। Thirdly, I want to tell about justification. और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ धर्मी ठहराए जाने के विषय में। We can see, I just want to show you two verses in Romans chapter 3 verse 24. मैं आपको दो वचन दिखाना चाहता हूँ। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 24 वचन।
It is written, being justified freely by his grace through the redemption that is in Jesus Christ. परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। See, when we go to God as a sinner, Lord, I'm fit for only hell. When we come to God like that, जब हम प्रभु के सामने एक पापी बनकर जाते हैं और जब हम कहते हैं कि प्रभु मैं केवल नरक ही के लिए योग्य हूं, जब हम इस प्रकार के सामने what God does in our life is he freely justifies us, just as if he counts us just as if I've never sinned. तब परमेश्वर हमारे जीवन में ये करता है कि वो सेत में हमें मुफ्त में धर्मी ठहराता है। इसका मतलब वो ये समझता है कि मानो मैंने पाप ही न किया हो। Just imagine, that is something that I have to remember always. It's a very, very important foundation in my Christian life. सोच कर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है जो मुझे याद रखना है। ये एक नींव है जिसे मुझे अपने मसीह जीवन में हमेशा याद रखना है। I want to tell you, it's by my effort I'll never reach there. मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपनी मेहनत से मैं कभी वहां पहुंच नहीं सकता। It is a free gift from Jesus Christ. वो यीशु मसीह से आने वाला एक मुफ्त सेतमेत का वरदान है। It's written here, justified freely by his grace because of the work Jesus has done for me. यहाँ लिखा है, उसके अनुग्रह से उस छुटकारे या उस काम के द्वारा जो मसीह यीशु ने किया है, सेत में धर्मी ठहराए जाना। See, if I'm clothed with Jesus Christ and if God looks at me as I'm as holy as Jesus is holy, how much boldness should we have in our Christian life? अगर मैं यीशु मसीह को पहने हुए हूं और अगर परमेश्वर सोचता है कि मैं उतना ही पवित्र हूं जितना यीशु है, तो सोचकर देखिए कितना हियाव मेरे मसीही जीवन में होना चाहिए। The second verse I want to show you is in Galatians chapter 2 and verse 16. दूसरा वचन मैं दिखाना चाहता हूँ, गलातियों की पत्री 2 अध्याय 16वां वचन। You can read that, brother, in Hindi. तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। See, if you read that verse carefully, you can see the word justified repeated time and again in just one verse. उस वचन को अगर आप ध्यान से पढ़ो तो धर्मी ठहराए जाना, इसको एक ही वचन में बार बार दोहराया गया है। What is the reason? Because it's we who are humans, we always want to have something by paying the price. क्या कारण है इसको दोहराए जाने का? क्योंकि हम जो मनुष्य है, हम सबके अंदर ये मानो एक फितरत होती है कीमत चुकाकर चीजों को लेने की। But Bible says God has put a stumbling stone in the Christian life. पर बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने मानो एक लड़खड़ाने वाला एक पत्थर रखा है मसीह जीवन में। And that stumbling stone is Jesus Christ. और वो पत्थर जो है जिसके द्वारा लोग लड़खड़ाते हैं, वो है खुद यीशु मसीह। And you know what is written? He who believes in him will not be stumbled, will not be disappointed. क्या आप जानते हो उसका मतलब क्या है? जो उसमें विश्वास करता है वो निराश नहीं होगा। But if I do not believe, that same stone becomes a stumbling block for me. पर अगर मैं विश्वास न करूं तो वही पत्थर मेरे लिए एक ऐसा पत्थर बनता है जिस पर मैं ठोकर खाता हूं। Jesus Christ becomes either a stumbling stone for me or a stone where I will never be disappointed. या तो यीशु मसीह एक ऐसा पत्थर बनता है जिसकी वजह से मैं ठोकर खाता हूँ, लड़खड़ाता हूँ, या एक ऐसा पत्थर बनता है जिसकी वजह से मैं कभी निराश नहीं होता। We have to believe these truths. We have to really believe and just praise the Lord and rejoice in these truths. हमें इन सत्यों पर विश्वास करना है, केवल विश्वास करके परमेश्वर की स्तुति करनी है और उसमें आनंद मनाना है। See, just imagine that you have to go from your place, your house to another place which is 1 kilometer away. सोच कर देखिए कि आपको अपने घर से एक दूसरी जगह जाना है जो 1 किलोमीटर दूर है। Imagine you have got, imagine one of your leg is tied. और सोच कर देखिए कि अगर आपका एक पैर बंधा हुआ है तो, and imagine you are walking with one leg. और सोच कर देखिए एक ही पैर से आप चल रहे हो।
No, it's an extremely difficult task to cover, say, 1 or 2 kilometers. ये बहुत ही कठिन काम है 1 या 1.5 किलोमीटर इस प्रकार से चलकर जाना। But when you have got 2 legs, to walk 1 kilometer or 2 kilometers is an easy thing. पर जब आपके पास 2 पैर है तो बड़ा आसान है 1-2 किलोमीटर चलकर जाना। That is how God's word is also. परमेश्वर का वचन बिल्कुल ऐसा ही है। God's word has got commandments and promises. परमेश्वर के वचन में आज्ञाएं और वायदे हैं। If we are only looking at the commandments, it's like one leg tied and we are trying to cross his crystal life with one leg. It's a very strainful thing. अगर हम केवल आज्ञाओं को ही देख रहे हैं तो ये बिल्कुल ऐसा है कि हमारे मसीह जीवन का एक पैर बंधा हुआ है और दूसरे पैर से हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत कठिन काम है। See, most of these verses which I showed you are promises. अधिकतर वचन जो आज मैंने आपको दिखाए वो सारे वायदे हैं। Bible says all the promises in God's word are yes in him, and to the glory of God we have to say amen. बाइबल हमें बताती है कि जितने परमेश्वर के वायदे हैं वो सब यीशु मसीह में हाँ है और उसी के द्वारा हमारा आमीन होता है। In other words, it is God who has promised. They are always yes in him. दूसरे शब्दों में परमेश्वर है जिसने वायदा किया है और उसमें सारे प्रतिज्ञाओं हाँ के साथ ही है। See, actually we are believing so many people. देखा जाए तो हम कई लोगों पर विश्वास करते हैं। Say many of you are sitting on a chair. Actually you are believing that person who made the chair. अधिकतर लोग आप में से आप कुर्सी पर बैठे हो, आप उस व्यक्ति में विश्वास करते हो जिसने उस कुर्सी को बनाया है। See, in my house in Vasai, once there was a broken plastic chair. Once I sat on that and I just fell down. और वसई में मेरे घर में एक प्लास्टिक की कुर्सी थी जो लगभग टूटने पर थी। मैं उस पर एक बार बैठा और मैं गिर गया। I never. It was a broken chair. I never knew that. After that, I kept that chair aside. और वो टूट गई थी ये मैं नहीं जानता था। उसके बाद मैंने उस कुर्सी को निकाल कर अलग रख दिया। But you know, when I'm confident that the chair is good, we can sit with boldness. पर जब मेरे अंदर हियाम होता है, हिम्मत होती है कि नहीं ये कुर्सी अच्छी है, तब हम बहुत ही निडर होकर बैठ सकते हैं। In the same way, you may be sitting or lying down under a fan. You have the person who put the fan on top. You are believing that person. You are sitting inside a house. The contractor you are believing. So many people we are believing every day. जैसे मान लो हम फैन के नीचे बैठे हैं या लेटे हैं तो हम उस व्यक्ति पर विश्वास करते हैं जिसने वो फैन ऊपर फिट किया है या जिस कॉन्ट्रैक्टर ने उस घर को बनाया है। हम कई लोगों पर विश्वास तो प्रतिदिन करते हैं। Can't we believe the Almighty God who has given us such wonderful promises? क्या हम एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते जिसने हमें ऐसे अद्भुत वायदे दिए हैं? I want to just talk about one thing. One of the most important things we need in our Christian life. और आखिरी में मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसके हमारे मसीह जीवन में हमें आवश्यकता है। That is baptism in the Holy Spirit. वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। I want to tell you, without the Holy Spirit, it's impossible to live this life. मैं आपको बताना चाहता हूँ पवित्र आत्मा के बगैर ये मसीही जीवन जीना असंभव है। But we receive the baptism of the Holy Spirit by simple faith. पर अगर हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा साधारण विश्वास से स्वीकार करें तो we can only receive the baptism of the Holy Spirit by simple faith. हम केवल पवित्र आत्मा का बपतिस्मा केवल साधारण विश्वास से ही प्राप्त कर सकते हैं। I want to tell you, by fasting or prayer or any effort, you will never receive the baptism of the Holy Spirit. उपवास करने से, प्रार्थना करने से, अपने किसी भी मेहनत करने से आप कभी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं प्राप्त कर सकोगे। Just want to show you 1 or 2 verses and close. मैं 1 या 2 वचन दिखाकर आप अंत करना चाहूंगा। First of all, we can see in John chapter 7. सबसे पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वां अध्याय verse 37 onwards. 33 वचन से आगे। On the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, "If anyone is thirsty, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water." But this he spoke concerning the Spirit, whom those believing in him would receive. For the Holy Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified. यूहन्ना 7 7 to 39.
यूहन्ना 7:37 से 39। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उससे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। So Jesus was not yet glorified the day he spoke all these things, but actually he spoke for each one of us. इसलिए जिस दिन यीशु ने ये शब्द कहे, उस दिन वो अपनी महिमा तक नहीं पहुंचा था, इसलिए ये शब्द यीशु ने हम सब के लिए कहे। We can see in Acts chapter 2, 32 and 33. प्रेरितों के काम 2 अध्याय 32 और 33 वचन में हम देखते हैं What happened after Jesus was glorified? यीशु मसीह महिमा को पहुंचने के बाद क्या हुआ। We can see in verse 33, therefore, being exalted to the right hand of God, having received from the Father the promise of the Holy Spirit, he poured this out on those you see and hear. प्रेरितों 2:33, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने ये उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। So today, if I genuinely repent and submit everything to God, that moment, by faith, I can receive the baptism of the Holy Spirit. इसलिए आज अगर मैं ईमानदारी से मन फिराकर सब कुछ परमेश्वर को समर्पित करता हूं, तो उस क्षण में पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त कर सकता हूं विश्वास। That is why in those if you read Acts, we can see many people received the same day they were born again, they received the baptism of the Holy Spirit also. इसलिए हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं कि कई लोगों ने जिस दिन उनका नया जन्म हुआ, उसी दिन उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी पाया। See, today many times people who are born again are not really disciples. They have not really submitted everything. That's why they have to wait. आज कई लोग जिनका नया जन्म होता है, वे वास्तविकता में शिष्य नहीं होते, उन्होंने सब कुछ समर्पित नहीं किया होता है, इसलिए कई समय उनको इंतजार करना पड़ता है। But when we really come and genuinely repent, put everything on the altar, that moment he pours the Holy Spirit on us. Brother, can you repeat one? When we truly repent, put everything on the altar, the same moment he pours the Holy Spirit on us. जब हम वास्तविकता में मन फिराकर सारी चीजों को उस वेदी पर रख देते हैं, उस समय हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा सकते हैं। We can receive the baptism of the Holy Spirit only by simple faith. हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा केवल साधारण विश्वास से ही प्राप्त कर सकते हैं। So I spoke about faith today. और इसलिए आज मैंने विश्वास के बारे में बात की, The importance of faith. विश्वास का क्या महत्व है। And I said that faith leads us to a true foundation in our Christian life. और मैंने कहा विश्वास हमारे मसीही जीवन में एक सच्चे नींव को तैयार करता है। And it is faith that really leads us even to sanctification. और विश्वास ही है जो हमें पवित्रकरण में भी ले जाता है। May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे।